पढ़ाई तो करनी ज़रूरी है और पढ़ाई ही डिग्री लेके आएगी. Now the problem is that today when you are not giving that paper and pen test at lot of times, you are only going to speculate which you don't know. Digital noise जो होती है वो आपके mental retention power को supplement नहीं करती है कभी भी, वो हमेशा डाउन ही करती है. I think having a positive mindset and act fast. Are you struggling to find the right job or feeling stuck in your career? In this episode, we are talking to two industry leaders from iMerit who have helped thousands of students and professionals break barriers and land better job opportunities. Sumit Shukla, the CEO and founder, and Ashutosh Bhardwaj, the CTO, share powerful insights on how shifting your mindset can completely change your career path. If you want to stay ahead in today's competition job market, this conversation is for you. Let's dive in. Good morning. Good morning. So for our audience, can you please introduce yourself and tell us a bit about your journey? Introduction is a very tough thing, right? And this is what we actually teach people. So I'm Sumit Shukla. I'm a founder for Scholars Merit Online. I've been an entrepreneur, or first generation entrepreneur for past 18 years now. I've been responsible for creating companies in banking domain, CRM domain, EdTech domain, and then international companies as well. In education-wise, if you ask me, I'm a graduate, postgraduate in computer, postgraduate in management, postgraduate in marketing, bachelor in law, and very soon you'll have a PhD as well attached to it. Establishing companies, managing projects, devising strategies is my focus, passion. And then I have trained at least 5,000 people in my entire life journey so far. Well, that's a lot. Okay, so I am Ashutosh Bhardwaj and having a total experience of around 15 years now in the industry, in the IT industry. Technology is what my passion is, and if we talk about the education, I am a graduate in computer science and engineering and a postgraduate in artificial intelligence and machine learning. Currently driving a mission of training people, and I have also trained around 500 plus people in my journey so far. So the most controversial topic, degree versus skill. What are your thoughts about that? Actually, great. You have hit the right question at the start. So yes, India is a huge country, and even in every country there is a huge number of people who are going there. So every now and then it is not possible for any government to change the education policies in every month or every day. While the technology and all is changing every day, after the infusion of artificial intelligence, it is more on a changing side. I won't say that degree is not required, but it's more of a gateway to get into that zone and prove yourself that yes, I do have something which I have done by my own. But skills are the one which will give you the jobs, or most probably the entrepreneurship or the thinking power to change the world or transform. This is what keep you in the industry for the long term. Correct. This will keep you get into a job with a degree, but it's correct. But you will only survive on the basis of the skills. Correct. Add this, degree is just a means, right, to achieve the journey, and Exactly. to embark on a journey to reach your goal. You need skills. exactly. So degree will only tell you what are the basic things which are required for you to really get on that particular journey to get your ultimate goal, which is your good career. जो मेरे को लगता है, everybody wants to have a good career in a fantastic profession, career of his dream company, whatever the concept is. So yes, without degree, you cannot have the gateway to the skills as well. पढ़ाई तो करनी ज़रूरी है और पढ़ाई ही डिग्री लेके आएगी. But after you study the required elements of that particular thing which is required, you get into that skill zone, जहाँ पे आप ज़्यादा उसको अप्लाई करना शुरू करते हो. The skill is application of your knowledge, and skills is something which will drive you further. So problem कहाँ आ रही है आज के यूथ में?
प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम बहुत बड़ी माइंडसेट में आ रही है। माइंडसेट का प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूँ, बहुत रिसर्च की चीज़ है ये आज की डेट में। पहले इंफॉर्मेशन चैनल्स का लिमिटेशन था, आपको उतना ही पता होता था जो पेपर्स में लिखा जाएगा, जो जर्नल्स में लिखा जाएगा उसको आप पढ़ोगे। पढ़ने का मतलब है आप रिसर्च कर रहे होगे और आप उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए उतना एफर्ट मार रहे होगे। आज की डेट में आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन चैनल्स हैं, आपके पास सोशल मीडिया है जो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को कहीं भी ले जाके छोड़ सकता है। तो जो किताबों की सही नॉलेज है या जो सही लोगों ने लिखा है वो इंफॉर्मेशन कितने लेवल तक पहुंचेगी ये बहुत मुश्किल हो जाता है जानना। तो अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? प्रॉब्लम होती है आदमी जिस चीज़ को पढ़ता है, जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको आसान समझ में आता है, वो उसको अपना डेस्टिनेशन मान लेता है कि यही मेरा रोल है, और वहाँ से फिर उसका एटीट्यूड गिरना शुरू हो जाता है, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स खत्म होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन तो गूगल करने पे अवेलेबल है। उसने अपना दिमाग कहाँ लगाया? आज भी जब पेपर और पेन में आप जब टेस्ट देते हो जाके, तो आप जो पढ़े होते हो उसको आप सोच के लिख रहे होते हो। You write only if you know. You cannot write if you don't know, or you will write the story of a film, right? Now the problem is that today when you are not giving that paper and pen test at lot of times, you are only going to speculate which you don't know, and then your technology knowledge is coming down, your knowledge is coming down, your general knowledge is coming down. AI आपको कितना अपलिफ्ट कर देगा? AI के पास सब इन्फॉर्मेशन है, लेकिन AI की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए भी आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो जरूरी है कि सही तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। अब AI के बारे में तो ये बताएंगे ज़्यादा जितना बता सकते हैं, बट अनलेस अंटिल द माइंडसेट ऑफ द पीपल ऑफ टुडेज स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, इज इम्प्रूविंग, इट इज़ वेरी गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू गेट इन टू दैट जोन जो उनके सक्सेस की तरफ उनको अच्छे से लेके जाता हो। क्या होना चाहिए माइंडसेट? किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? Mindset should be to learn, to grow, to adapt. Adapt where? Mindset should be positive also, like you know, अगर मैं एक ग्रेजुएट हूँ या मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए मेरा कि येस आई मे नॉट बी गेटिंग द जॉब एंड ऑल, सो इट शोज द कॉन्फिडेंस एज वेल, है ना। ऑल्सो मेरा माइंडसेट ये भी होना चाहिए कि थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली, तो हर जो नई चीज़ें आ रही हैं आई शुड बी एबल टू लर्न देम रादर देन मैं उसको एक रट के पूरा याद करूँ। दैट वे आई माइट नॉट बी सक्सीड, but I will be succeed if I know the concepts and I know how to solve that particular problem and create it solve concept. नहीं तो अपने बचपन में जाओ आप। आपके बचपन में कॉमिक्स थी, आपके बचपन में मैगजीन्स थी, आप पढ़ते थे। अब आपका तो नहीं पता, हमारे बचपन तो आपसे ज़्यादा पुराने थे, मगर ये है कि हम लोग पढ़ते थे। हमारे घर में 8-9 किताबें आती थी जो हम पढ़ते थे। रीडिंग स्किल्स एनहांस होती थी, लिखते थे तो राइटिंग स्किल्स एनहांस होती थी। रीडिंग और राइटिंग से मेंटल कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होता है, आई कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होता है, मेंटल कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट होता है, तो कोई चीज़ को रिटेंशन पावर बढ़ती है। आज के बच्चों की रिटेंशन पावर बहुत कम है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, हम देखते हैं उनकी रिटेंशन पावर कितनी कमजोर है, क्योंकि दिन भर तो आप मोबाइल देखते हो। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होता है, इसको हम डिजिटल नॉइज़ भी बोलते हैं। डिजिटल नॉइज़ जो होती है वो आपके मेंटल रिटेंशन पावर को सप्लीमेंट नहीं करती है कभी भी, वो हमेशा डाउन ही करती है, उसको सप्रेस करती है। तो और माइंडसेट डिजिटल नॉइज़ की वजह से फिर एग्रेसिवनेस की तरफ चालू होता है, एग्रेशन की तरफ चालू होता है। आप देखिए आज की डेट में जो नॉन टॉलरेंस है वो बढ़ चुका है। इसका रीज़न यही है कि लोगों के अंदर वो नॉलेज का जो बेस होता है वो कमज़ोर होता जा रहा है, लोग उग्र होते जा रहे हैं। आप अगर सड़क पे भी जाइए, कुछ कर रहे हो, आप किसी से बात कीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा बच्चा पढ़ा लिखा भी है कि नहीं, जिस तरीके से वो बोल रहा होता है। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच यू आर गोइंग टू फेस unless until you get back to the basic nature of the education, which says that the positivity is the best way to move forward. It is going to be very difficult to understand कि real problem कहाँ पे लाई कर रही है। टेक्नोलॉजी आसान है, जॉब मिलना आसान है, ये इतने बड़े काम नहीं है। आप अगर किसी चीज़ को अच्छे से मैनेज कर लो तो ये भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ टिकना मुश्किल है। एक रिसेंट स्टडी आई थी बाय द वे, वो स्टडी ये कह रही थी कि नेक्स्ट जेन जो न्यू जनरेशन जो है, उसको किसी कंपनी में 5 से 6 महीने तक मैनेज कर पाना ही मुश्किल हो गया है। और HR मैनेजर्स हों, अटेंशन स्पैन तो छोड़िए, उनके एटीट्यूड की वजह से, एटीट्यूड बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, माइंडसेट बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। और ये स्टडी अभी 2 हफ्ते पहले निकली है कि मैनेजर्स जो है वो 5-6 महीने के बाद हाथ जोड़ लेते हैं कि हम इनके साथ काम नहीं कर सकते। तो न्यू जनरेशन को समझना है कि उनको पहले तो ह्यूमिलिटी लाना शुरू करना है और अपना माइंडसेट पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है। कोई एक ऐसी हैबिट जो मैं अभी से शुरू कर सकूं?
थोड़ा मतलब पॉजिटिविटी लाने के लिए, जैसा आपने बोला पॉजिटिविटी और ये डिजिटल नॉइज से बचने के लिए? So reading, already told in the last question, reading is the most important habit. आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो, फिक्शन पढ़ो, एनी बुक, आप अध्यात्म पढ़ो, एनीथिंग whatever you like, just study reading, start reading like 15 minutes a day. और रीडिंग का मतलब यहाँ पे वो पॉकेट एफएम पे जाके ऑडियो बुक सुनना नहीं है. तो अगेन फिर से वही डिजिटल नहीं आना है. वी हैव टू पुट आवर फोन्स अवे एंड देन हैव द बुक इन आवर हैंड टू एक्चुअली रीड समथिंग. आप हिंदी पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, इट डजंट मैटर. द एक्चुअल द हैबिट विच यू नीड टू डेवलप इज द रीडिंग. किताब लो, किताब के वजन से उसके वजन को झेलो और उससे उसको पढ़ो. आपके हाथ की ताकत भी बढ़ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके साथ माइंड की ताकत भी बढ़ रही है. क्योंकि आज आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे जाके करना, आप एक किताब को थोड़ी देर तक हाथ पे रखना, आपका हाथ दर्द करना शुरू कर जाएगा. आप उसे रख दोगे. पहले कैसे होता था? पहले आप दिन भर, अब आपका नहीं पता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन हम दिन भर किताब लेके आराम से पढ़ सकते थे और वही होता था. आज के बच्चे नहीं कर सकते. बच्चों को मैं किताब के साथ देखता ही नहीं हूँ. और अगर आपने ये स्टडी और पढ़ी हो, स्वीडन ने अभी लास्ट मंथ जो है एक लेजिस्लेचर लेके आए हैं वो लोग, that they have asked all the schools to remove all digital devices from their schools till class 6th. Sweden was one of the countries which had all digital implementations, right? सारे स्कूलों में, सारे क्लासेस में सिर्फ टैबलेट्स वगैरह हुआ करते थे. लास्ट मंथ उनका लेजिस्लेशन आया है, क्लास 6 तक कोई बच्चे को डिजिटल अप्लायंस या इक्विपमेंट के पास स्कूल में नहीं रखा जाएगा. एडिक्शन, बहुत सारी चीज, डिजिटल नॉइज बहुत बड़ा चीज है जो अब लोग रियलाइज कर रहे हैं. हटाने के लिए बेसिकली अगेन जो बेसिक टाइम है, लाइक 6 तक इज द बेसिक टाइम फॉर द चिल्ड्रन. दैट बेसिक टाइम एटलीस्ट शुड बी फोकस्ड ऑन द फंडामेंटल एजुकेशन रादर देन डिजिटल नॉइज. तो और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बच्चे पढ़ाई के साथ आगे आना शुरू होंगे. आज का बच्चा पढ़ाई के साथ तो आगे नहीं आ रहा. मैं तो कह सकता हूँ नहीं आ रहा. बाकी मेरे को इस बात पे काफी ब्रिकबैट्स मिल सकते हैं, बट कहने में तो क्या बुराई है. आपने काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट्स भी करी हैं. सो आप क्या देखते हो, क्या कॉमन चीज़ें हैं फॉर एनी कैंडिडेट गेटिंग रिजेक्टेड? किस रीज़न से, क्या कॉमन और रीज़न होता है? बहुत सारी कंपनीज का अलग तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है. मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं किस तरीके से किसी चीज़ को देखता हूँ. सबसे पहले हम देखते हैं उसका जनरल एप्टीट्यूड क्या है. जनरल एप्टीट्यूड में हम टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स को भी टच करते हैं. अगर उस बच्चे का जनरल एप्टीट्यूड एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर है तो हम उसको कम्युनिकेशन राउंड में लेके जाते हैं. कम्युनिकेशन राउंड का मतलब है हम उससे बातें करके देखते हैं कि बातों में कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, एटीट्यूड क्या है और फ्लुएंसी कितनी है. एक बार अगर वो चीज़ सही है तो हम उसको फिर एक्चुअल जो उसने पढ़ाई की है उसके इंटरव्यू में लेके जाते हैं कि उसने पढ़ा कितना था. देखिए, नंबर किसी का 8 CGPA, किसी का 8 CGPA है, 8.5, वो डिफाइन नहीं करता कि उस बंदे की नॉलेज कितनी है. मैंने कुछ ऐसे लोग भी हायर किए अपनी ज़िंदगी में जिनका CGPA 6.0 होगा, लेकिन जब उनसे मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने वो जवाब दिया जो ज़रूरत थी. सो इट डिपेंड्स कि वेयर ही हैज़ रियली पुट द फोकस ऑन, राइट. इट डजेंट मैटर व्हाट हैज़ हैपेंड इन द ग्रेड पॉइंट. ये 3 चीज़ें जब हो जाती हैं तब हम शुरू करते हैं उसके सॉफ्ट एस्पेक्ट को. सॉफ्ट एस्पेक्ट होता है कि उसका एटीट्यूड जो है वो वर्क एनवायरनमेंट की तरफ कैसा है, प्रेशर में कैसे वो काम करेगा. तो देखिए, टेक्निकल स्किल भी पूरी टेस्ट होगी, जनरल स्किल्स भी टेस्ट होंगी और वैल्यूज और स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स भी टेस्ट होगी. जब ये तीनों चीज़ें मैच होती हैं तो बच्चा हायर होता है. या फिर हमको उसके अंदर ऐसा पोटेंशियल दिखना चाहिए कि किसी तीसरी स्किल पे हम उसके साथ काम कर सकते हैं. बाकी तुमने कुछ स्पेशल देखा? क्या हो सकती है नहीं, इन 3 स्किल्स में से कौन सी स्किल ऐसी है जो कमजोर तो है लेकिन हम इस पे काम कर सकते हैं. अगर 2 स्ट्रॉन्ग इम्प्रूव किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है तो हम हायर करते हैं. और अगर आपके पास काफ़ी सारे रिज्यूमेज हैं, एक है कॉमन रिज्यूमे, मतलब कॉमन कॉलेज से निकला है, और एक है IIM IIT का बच्चा, तो आपके एटीट्यूड में क्या डिफरेंस आता है? बॉस, आप ये समझिए, मैंने ज़िंदगी में कम से कम नहीं तो 500 से 600 IIT के बच्चों के साथ काम किया, उनको काम सिखाया भी है. तो ऐसा कुछ नहीं है. IIT के बच्चों का लर्निंग कैपेबिलिटी जो होती है, जो उनका एप्टीट्यूड होता है, बहुत फास्ट होता है. एटीट्यूड में कभी कभी प्रॉब्लम आती है तो बच्चे रिजेक्ट भी होते हैं. ऐसा नहीं कि IIT का हर बच्चा हमेशा सेलेक्ट होता हो, मगर उनका लर्निंग एप्टीट्यूड बहुत तेज होता है.
जो यहाँ के कॉमन बच्चों से सुपीरियर ही होता है, मैं आपको बताऊं। सुपीरियर ही होता है, बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो दूसरे जो कॉलेजेस होते हैं उसमें भी कई बार एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हमें मिलता है, एंड वी कॉल दिस फ्रेमवर्क एज एक्टिव ऑल्सो। इट्स लाइक A for aptitude, C for cognitive, T for technical, and V for verbal. So we call it as ACTV, which is active framework for us to hire. ऐसा क्यों होता है, इतना डिफरेंस क्यों होता है कि वो मतलब फास्ट पर होता है और हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। आपने आईआईटी के करिकुलम को देखा हो तो आईआईटी करिकुलम ऑलवेज हैज़ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स इन्वॉल्व। वरना क्यों होता है कि आईआईटी का बच्चा कोई नई चीज़ डिस्कवर कर लेता है, उसको कोई नई चीज़ मैन्युफैक्चर कर देता है, वो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में जो है एडवांस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है चीज़ों का। कॉलेजेस में क्या है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में वो उस करिकुलम को ही कंप्लीट करने के पीछे इतनी बुरी तरह भाग रहे हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल की तरफ तो ले ही नहीं जा रहे होते। उनका लर्निंग एबिलिटी बहुत अलग है, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अलग तरीके से आती है। तभी तो हम बोलते हैं अगर 100 जॉब अवेलेबल होंगे और 100 बच्चे अगर टीयर 1 के होंगे तो फिर टीयर 2 को कभी मौका नहीं मिलने वाला। दैट्स अ हार्श रियलिटी। दैट इज अ वेरी हार्श रियलिटी। That is, yes. 5 मिलियन से ऊपर लोग ऑलरेडी जॉब में प्लेस्ड हैं। मैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की ज़्यादातर बातें करता हूँ इस समय। 350,000 नए जॉब्स ऐड होंगे इस साल। आने वाले हर साल में इतने ज़्यादा जॉब्स ऐड होते जाएंगे। लोग कहते हैं जॉब्स एआई छीन लेगा, सब कुछ कर लेगा, सब होगा, लेकिन फिर भी जॉब्स ऐड होंगे। 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में है, जो घट के 1.2 1.1 तक भी पहुंच जाएगा जल्दी ही। मगर ये इतने स्टूडेंट्स निकलेंगे, लेकिन क्या हर स्टूडेंट प्लेस होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो 1:3 का जॉब रेशियो चल रहा है अगर नए जॉब्स में आप देखो। दूसरा, NASSCOM रिपोर्ट्स बोलती हैं और सर्वे रिपोर्ट्स बोलती हैं 42% ऑफ द रियल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर ओनली एम्प्लॉयबल। 42% एम्प्लॉयबल बोलती हैं, एम्प्लॉयड नहीं बोलती हैं। सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयबल का मतलब कि इन्हें जॉब मिल सकती है, इनके पास कुछ नॉलेज है। और एक्चुअल नंबर्स देखिए तो 12% लोग ही एम्प्लॉय होते हैं, 10 से 12%। ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया कह रही है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बोल रही है। ये नंबर्स अगर हैं तो ये स्केरी भी हैं, क्योंकि जॉब्स तो चलिए 300,000 निकल आए, प्लेस कितने हो रहे हैं? 40,000। और 40,000 में टीयर 1 के निकालिए, टीयर 1 में जॉब मिलेगा क्योंकि उन्होंने उसको तैयार किया उस तरीके से, तो वो भी चले गए 25,000 जॉब करीब वहाँ से 26,000 जॉब। तो कितने बच्चे टीयर 2 के लिए अवेलेबल हैं? और मास रिक्रूटर्स की बात नहीं करता मैं उस समय। मास रिक्रूटर्स भी कितना हायर कर लेंगे? एक साल में मास रिक्रूटर्स हायर करेंगे तो 120,000 130,000 और करेंगे, फिर क्या होगा? तो 15 से 16,000 जॉब्स के लिए कम से कम 900,000 9 लाख बच्चा भाग रहा है। तो कौन स्टैंड आउट करेगा? जो इसने फ्रेमवर्क बताया अभी ACTV, अगर वो ACTV फ्रेमवर्क के ऊपर कोई सही से काम करता है, सारे के सारे चेक बॉक्सेस को टिक करता है, तो वो स्टैंड आउट करेगा, क्योंकि जॉब तो मिलेगी ना उन 15,000 16,000 बच्चों को। उसमें आप क्यों नहीं हो सकते? वो आप इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं देना शुरू किया क्या चीज़ की ज़रूरत है। जो दे जाएगा वो हो जाएगा। ये रैट रेस है। डोंट यू थिंक कि बच्चों का माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए? रादर देन बीइंग अ जॉब सीकर, उन्हें जॉब गिवर बनना चाहिए। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बहुत मज़ेदार टॉपिक है एक्चुअली। कुछ दिन पहले ही लिंक्डइन पे इस पे बातें शुरू हुई थी। दुनिया में हर आदमी एंटरप्रेन्योर बन गया, हर आदमी ने AI इंप्लीमेंट कर दिया, AI इसके लिए प्रोडक्ट बना रहा है। ऑटो छोड़िए, आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने ही प्रोडक्ट बनाया, आपने ही प्रोडक्ट बना लिया, खरीद कौन रहा है? ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको बताऊं। एक बेकरी की दुकान खुली और एक हलवाई की दुकान खुली। अब इन्होंने भी अपनी बेकरी में सामान रख लिया, इन्होंने भी अपनी दुकान में सामान रख लिया। अब इसके पास 1 रुपए था, इसने बोला मुझे भूख लगी, वो बेकरी वाले के पास गया, बोला मुझे 1 रुपए का केक दे दो, उसने 1 रुपए का केक दे दिया, इसकी इनकम हो गई 1 रुपए। अब इसको भूख लगी, ये मिठाई वाले के पास गया, 1 रुपए का समोसा दे दो, उसने 1 रुपए का समोसा दे दिया, इसकी इनकम भी 1 रुपए हो गई। 100 बार ट्रांजैक्शन हुआ, इनका सामान भी खत्म हो रहा है, इनका सामान भी खत्म हो रहा है, इसको भी 100 रुपए की आमदनी हो चुकी है, इसको भी 100 रुपए की आमदनी हो चुकी है। लेकिन पैसा कितना था यहाँ पे मार्केट में? 1 रुपया। तो हर कोई जॉब गिवर बन गया और कोई जॉब लेने वाला था ही नहीं, तो जॉब है कहाँ पे? If you really think the whole strategy of everybody becoming an entrepreneur in the world, if everybody will become an entrepreneur who is a producer of the services, who is going to consume the services? और कंज्यूमर होगा ही नहीं तो इकोनॉमी होगी क्या? तो सारी चीज़ें एक ही सिंगल फ्रेमवर्क से नहीं जा सकती।
एज यू मेंशन कि सबको जॉब गिवर बनना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे बच्चे जॉब गिवर बन जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे जॉब सीकर ही बन जाए। मेन थिंग इस जॉब सीकर और जॉब गिवर के बीच में एक आइटम है विच इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर, जो हमने अपने सेमिनार में बात करी थी, विच इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आप वो एंटरप्रेन्योर बन के भी सॉल्व कर सकते हो, आप वो एम्प्लॉय बन के भी सॉल्व कर सकते हो, यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, राइट? सो बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ये स्ट्रेटजी को छोड़ देना चाहिए, लाइक जॉब सीकर, जॉब गिवर, दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ राइट थिंग। अगेन फ्रेमवर्क नहीं है तो सबके सब एक माइंडसेट में नहीं जा सकते। That's great. तो इतने सारे कॉलेजेस में प्रोग्राम चल भी रहे हैं, पर फिर भी जो कैंडिडेट्स हैं वो एम्प्लॉयबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये गैप कहाँ आ रहा है? ये बेसिकली जो हमारे एजुकेशन वर्टिकल की चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं बच्चे, नंबर 1 तो वो है दैट सब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड, Yes. वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री इज़ अ डिफरेंट वन। Yes. एक गैप तो वो है विच इज़ अ मोस्ट ऑब्वियस गैप। सेकेंड इज़ द माइंडसेट और एटीट्यूड गैप। बच्चे जब कॉलेज में आते हैं दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, दे यूज्ड टू हैव कि कॉलेज में हम मस्ती करेंगे एंड यू नो नाउ वी आर लिविंग आवर बेस्ट टाइम्स, वी आर लिविंग आवर ग्रेजुएट लाइफ, बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज एंटायरली डिफरेंट। वहाँ पे यू वोंट बी रिकॉग्नाइज्ड इफ़ यू आर नॉट एबल टू solve the challenges or you are not able to do your job properly. So I think that is something which we need to fill in. देखो, ग्रेजुएशन करना एक एक्सरसाइज है, करेक्ट? कंपनीज को लोग चाहिए जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और जल्दी से प्रोडक्टिव हो, जिसको हम लोग प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत रैपिड पेस पे चेंज हो रही है, करिकुलम उतने रैपिड पेस पे चेंज नहीं हो सकता। तो करिकुलम को चेंज करने के लिए जो करिकुलम अथॉरिटी होती है वो जब तक टाइम लेती है पिछले वाली चीज़ को चेंज करने के लिए, तब तक 2 बार साइकिल और बढ़ चुकी होती है। ऑब्सोलीट तो नहीं बोलूँगा, देखो बेसिक्स कभी चेंज नहीं होते, सबसे बड़ी बात है बेसिक्स तो स्ट्रांग रखने चाहिए। तो जो पढ़ रहे हो वो कितना रिलेवेंट है, पहली बात तो ये। चलो मान लिया कि बहुत रिलेवेंसी है भी जो करिकुलम बनाया गया है, उसकी एप्लीकेबिलिटी तुमने कितनी समझी? कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स उसको एप्लीकेबिलिटी कितनी बना पाते हैं? एप्लीकेबिलिटी बनाने के साथ फिर तुमने उनके एटीट्यूड पे किस तरीके से काम किया है, उनके माइंडसेट पे कैसे काम किया है। देखो, सर्विस इंडस्ट्री जो है वो डिफरेंट तरीके से काम करती है। सर्विस इंडस्ट्री हम्बल होनी चाहिए, सर्विस इंडस्ट्री लेबोरियस होनी चाहिए, सर्विस इंडस्ट्री में विलिंगनेस टू वर्क होना चाहिए टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन, करेक्ट? ये चीज़ों को कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ नहीं बताते हैं। उस समय एक 2 सेमिनार में जब मैंने अटेंड किया तो वहाँ पे तो कुछ वीसीज ने ऐसा बोल दिया कि हम बच्चों को जॉब देने के लिए ट्रेनिंग नहीं दे रहे, पढ़ा नहीं रहे, हम उन्हें सिर्फ डिग्री देने के लिए पढ़ा रहे हैं। उन्हें जॉब चाहिए, वो अपनी तैयारी खुद करें, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जब मैंने वो सुना तो मैंने कहा ये तो मामला ऐसा होता जा रहा है कि अब यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट को ये समझ में आने लगा है कि जो इंडस्ट्री को चाहिए वो उनको पता ही नहीं है। तो जब हमको इंडस्ट्री की समझ ही नहीं है तो फिर हम ये वाला घर्रा अपना लेते हैं जो कहता है कि वी आर ओनली टीचिंग स्टूडेंट्स टू गेट द डिग्रीज ऑन and we are not there to provide the jobs. The provision of jobs is with the industry and it is between the industry and the student, not between us and the student. ये सब बातें होने के बाद मुझे समझ में आ चुका है कि इस समय स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को कुछ ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है जो उनको इंडस्ट्री के अलाइन करती है, और उन अलाइनमेंट्स को कॉलेज के साथ मिलके करो, अलग से करो। लेकिन अगर किसी को जॉब करना है तो उसको प्लानिंग अपनी सेकेंड ईयर ऑनवर्ड शुरू कर देनी चाहिए, 4th ईयर में आके उसको ये प्लानिंग नहीं करनी चाहिए कभी। तो एआई का क्या इम्पैक्ट रहेगा? आप तो ऐसा टॉपिक उठा रहे हो जिसके ऊपर दुनिया बोल रही है। आई अटेंडेड अ सेमिनार in which people said AI or die. AI or Die. die. I or die. I or die. Which means that AI is going to be there in your life whether you like it or not. Now, what is AI? We have to understand. AI is not exaggerated automation, first of all. AI is the ability of the system to understand what your problem is or your question is. अभी problem solving AI से बहुत कम आए हैं. Understand your question and then provide the relevant answer to it. उस आंसर का इंटरप्रिटेशन AI का काम नहीं है इस समय. आंसर का इंटरप्रिटेशन किसका काम है? वो हमारा काम, वो आपका काम है. So AI will be here. AI will dominate the future of the industry. It is up to the industry to really implement the AI in its real format, in its real manner,
जहाँ पे सही तरीके के यूज़ केसेस को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। बाकी यही चैंपियन ये है हमारे भाई साहब, ये आपको बताएंगे आगे क्या है। मैं इसका आंसर ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से दूंगा। जैसे एक समय इंटरनेट आया हाँ जी, तो बहुत सारी जॉब्स चेंज हुई, राइट। उससे क्या हुआ, बहुत सारा इम्पैक्ट आया, एक रेवोल्यूशन था वो। एक रेवोल्यूशन आया, राइट। सिमिलरली एआई इज AI द रेवोल्यूशन फॉर दिस डिकेड। हर डिकेड में कुछ ना कुछ होता ही है। तो उस समय क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल जॉब्स चल रहे थे, पीपल स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग टू द इंटरनेट बेस्ड स्किल्स। सिमिलरली नाउ व्हाट विल हैपन इज, जो ट्रेडिशनल जॉब चल रहे हैं उनको छोड़ के पीपल विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग टू द एआई स्किल्स। तो अल्टीमेटली जॉब्स विल बी देयर बट इम्पैक्टिंग दी हैविंग द इम्पैक्ट ऑन एआई। और ये एआई हर फील्ड में आना ही है, तो मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एवरीवेयर इट विल मेक सम इम्पैक्ट इन एवरी डेज लाइफ एज वेल। आ ही गया वो, चैट जीपीटी फोन में भी आ गया है, तो नाउ पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चंस देयर। अब सिंपल चीज़ है, आपके क्लासरूम में फैकल्टी जो है वो एआई की फैकल्टी या रोबोट इस तरीके का होगा जो दिखने में ह्यूमनॉइड होगा और आपको सब कुछ पढ़ाएगा एक्सेप्ट फॉर द इमोशंस व्हाट ह्यूमंस कैन इमिट। वो सारी चीज़ें जो है समझेगा, सारी चीज़ें बताएगा और बच्चों को पढ़ा के चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जल्दी ही, कम से कम आई थिंक इन अनदर 10 years और समथिंग, बच्चे पकड़ भी नहीं पाएंगे ये जो हमको पढ़ा के गया ये एआई था, रोबोट था, ये एक्चुअली आदमी पढ़ा के गया। ये हो रहा है, एक मॉडल आता है कि जो आप फेशियल रिकग्निशन कर लेता है तो एकदम आपके जैसे ही वो डमी बना। वो ऑनलाइन हो रहा है, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ कि सामने जैसे आप जो है मेरे सामने आएंगे तो मैं ये नहीं बता सकता कि आप रोबोट है या आप ह्यूमन है। तो स्टूडेंट्स कैसे अपना एआई प्रूफ करियर बना सकते हैं? देखिए, करियर एआई प्रूफ बनाने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। और अगर आप पिछले 2-3 महीने के जितने भी टॉप वॉइसेस हैं वर्ल्ड की, उनको अगर आप सुने तो सब ये कह रहे हैं कि एआई आपके लिए नेसेसरी ईविल है, मगर अभी भी आपको वो लोग चाहिए जो उसको इंटरप्रेट कर सकें, उसको समझ सकें। तो इसीलिए मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ कि अपने कॉग्निटिव स्किल्स को, अपनी वर्बल स्किल्स को, अपनी टेक्निकल स्किल्स को, अपने एप्टीट्यूड को और एटीट्यूड को उस लेवल पे लेके जाइए जहाँ पे आप किसी भी प्रॉब्लम को समझ सको और उसको सॉल्व कर सको। विदाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू जस्ट गो ask the AI to write a code, implement something। वो क्या ही implement कर देगा, आप क्या ही समझ लेंगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले LinkedIn पे लिखा कि एक जॉब आई और जॉब की रिक्वायरमेंट पे एक AI ने उसका रिज्यूमे बनाया और दूसरे AI ने वही रिज्यूमे पढ़ा, वो बच्चा सेलेक्ट हो गया, वो AI यूज करके काम कर रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पे, ना उसको पता क्या हुआ था ना उसको पता क्या हुआ था, लेकिन काम हो रहा है। दिस इज नॉट द वे इंडस्ट्री विल वर्क एक्चुअली। इंडस्ट्री विल नीड मोर thorough professionals who understand what the problem is and how to provide a solution to it. Even to check the solution, like अगर मैं AI पे जाता भी हूँ and I find some solution to some problem, I should be able to interpret that solution whether it is right for me or not. So उसके लिए भी मुझे एक ऐसा professional ही चाहिए who can actually understand what is going on in the entire scenario. तो एक एसेंस जो इमोशन है, एक इंटेलेक्ट है ह्यूमन बीइंग का, वो अभी तक मतलब जनरल एआई तो आएगा, अभी आने वाले अभी तक नहीं रिप्लेस कर, अभी तक नहीं आया है, बट यस उस पर भी काम काफ़ी चल रहा है। रिसर्चेज आर गोइंग ऑन टू ड्राइव द इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ऑल, बट दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ह्यूमन ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी को आज तक कोई ट्रेस नहीं कर पाया ना, तो अभी एआई भी ट्रेस नहीं कर पाया है। और इमोशंस ह्यूमन ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी से आते हैं। तो वी आर ऑल्सो वेटिंग टू सी व्हाट द नेक्स्ट मूव ऑफ द एआई। हो सकता है हम शाम तक जब तक घर जाएं तब तक कुछ नया ही का मॉडल आ जाए। आपने भी काफी इंडस्ट्रीज में काम किया, तो आपने अपने फेलियर से क्या सीखा? पहली बात क्या फेलियर्स थे जो मैं सीखूं, बट नहीं मेरे जस्ट जोक्स अपार्ट। देखिए, फेलियर्स को डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फेलियर वर्ड पास और फेल की तरह नहीं यूज होता है। फेलियर वर्ड जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज होता है जब आप किसी चीज को अचीव करना चाहते थे और उसको उस तरीके से अचीव नहीं कर पाए वेयर इट वाज रिक्वायर्ड, राइट। तो सेम मिस्टेक आप दोबारा रिपीट ना करो, यही लर्निंग होती है। किसी चीज को आपको डिलीवर करना था, किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को आपको डिलीवर करना था, आपकी टीम उस रिक्वायरमेंट को सही से अगर इंटरप्रेट नहीं कर पाई और उसने उस टाइम
ड्यूरेशन में जिसमें उसको सोल्यूशन चाहिए था वो सोल्यूशन नहीं दिया, ये फेलियर है. सो हाउ डू वी लर्न फ्रॉम इट? वी लर्न दैट what was lacking in this particular domain or maybe in this particular project, which did not let the project go on time as planned. Then we sit with our project managers, then we sit with our project teams to understand क्या problem रह गई थी इसमें. Then they tell us कि इसमें हो सकता है ये documentation सही से नहीं आया हो, या client की requirement सही से freeze नहीं हुई हो. So what we do is next time we try to eliminate those roadblocks which were there for the last project. So there's nothing like a grand failure in corporate life. आप कोई चीज़ पे थोड़ा setback लेते हो, उससे सीखते हो और आगे बढ़ जाते हो. Just to add, like it is right whatever he has said. आप जो setback आपने लिया, अब उसको solve करने के लिए what you will do is you will devise some kind of format, some kind of framework. Like अगर requirement सही से नहीं आई थी तो you will ask the right questions next time कि आपको requirement सही से आए. You will devise the mechanism to freeze those requirements कि हम यहाँ पे इनको freeze करवाएं और we do not start the next work once before it is freezed. तो वही है similar kind of learnings from the failures. We just have to make sure that we are not repeating our mistakes. एक लास्ट लाइफ लेसन जो आप अपने 20 years old खुद को देना चाहें. बहुत कठिन सवाल आपने पूछ लिया. Live positively, think positively, act positively. I think having a positive mindset and act fast. Otherwise जो आपका आइडिया होगा वो कोई और बना के निकल जाएगा तब तक. Wow, what an insightful conversation. This was all about shifting your mindset to grab better job opportunities. Yeah, I got it. Mindset shift. In fact, I already started working on my problem solving skills. That's great. For everyone watching, if you found this conversation helpful, Like the video. and yes, also don't forget to Comment your biggest takeaway. Mine is that I need to actually start applying for job rather than just scrolling the reels. exactly. And if you think this episode can help a friend, Share it. Don't be selfish. Help others too. haha, well said. And make sure to subscribe for more such conversation. And by then, see you in the next episode. And hopefully by then I will have a job.